Hello students, welcome my channel. Myself Dr. D. Krishna with new topic, that is human genetics. Human genetics term was given by A. Garrod because first of all human genetical disorders alkapnuria was observed by A. Garrod. So A. Garrod was called father of human genetics. Alkapnuria disease also called black urine disease. Okay. After that, human genetics is also called eugenics, and term eugenics was given by Galton. Term eugenics was given by Galton. Okay. Eugenics means well born. Eugenics means well born. It means birth of offspring in well-being form without any genetical disorders. Okay. See, human genetics, father A. Garrod discovered first genetical disorders alkapnuria, also called black urine disease. And human genetics means it is a study or analysis of inheritance of character in humans. A study of inheritance of character in human. एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ह्यूमन कैरेक्टर का कैसे ट्रांसफर हो रहा है, कैसे इनहेरिटेंस हो रहा है, इसी का स्टडी कहलाता है ह्यूमन जेनेटिक्स. एंड एज लाइक दिस यूजेनिक्स इज ऑल्सो. यूजेनिक्स फादर गाल्टन, improvement of human beings by the use of principles of inheritance or changes in hereditary character by scientific manner. With the help of scientific method, improvement in human beings by change in genetic materials by hereditary material is called eugenics. But there is a great problem in a study of inheritance of character generation to generation in human beings. अब तक मेंडल या जिनका भी एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा, वह एक्सपेरिमेंट ह्यूमन के अलावे किसी दूसरे ऑफस्प्रिंग, किसी दूसरे लिविंग्स पर था, प्लांट और एनिमल. लेकिन यहां जो ह्यूमन पर एक्सपेरिमेंट है, यह एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. इट मीन्स अ स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन ह्यूमन इज नॉट पॉसिबल डायरेक्टली ड्यू टू डिफरेंट रीजन्स, ड्यू टू वेरियस रीजन. ह्यूमन के केस में कैरेक्टर के डायरेक्ट इनहेरिटेंस का स्टडी पॉसिबल नहीं है. बहुत सारे रीजन है. लॉन्ग रिप्रोडक्टिव टाइम, शॉर्ट रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ लेस नंबर ऑफ प्रोजेनी, एंड normal mating or controlled mating in human is not possible. So there are different reasons by which we can say a study of inheritance of character in human is directly not possible. In human, direct genetical study are not possible. Okay? अब क्यों नहीं है तो कुछ ये बताया, देखता हूं मैं. Okay. In human, direct a study of genetical disorders or inheritance of character generation to generation is not possible due to some reasons such as: first, cell size is very small and number of chromosome is more. In human cell, number of chromosome is 23 pair or 46, that is more. Controlled genetical crosses are not possible
मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में कराए शॉर्ट का लॉन्ग के साथ, राउंड का रिंकल्ड के साथ, वह कंट्रोल्ड वे में क्रॉस कराकर नेक्स्ट जनरेशन में प्रोजेनी की पॉसिबिलिटी क्या है इसका स्टडी उन्होंने किया। लेकिन ह्यूमन के केस में कंट्रोल्ड ब्रीडिंग, कंट्रोल क्रॉसेस इज नॉट पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट लॉन्ग जनरेशन टाइम 18 to 20 years. Humans are able to reproduce after 18 or 20 years. So it is long generation. Produces less number of offspring, mainly one. General. In case of twins, more than one offspring also produced in human. Having high level of heterozygosity. It means in case of human, due to large number of chromosome, due to numerous number of genes, there are several types of variations present. It means it also responsible for high level of heterozygosity. Okay, and next, having large number of polygenic characters in human body. So many characters are controlled by more than one types of gene, or polygenic character means character that are controlled by many genes. ओके, जिसका कि एक एग्जांपल हम लोग स्किन कलर में देख चुके हैं, डेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 6 जीन्स। उसका जो इनहेरिटेंस होता है 6 जीन से होता है। ओके, तो डायरेक्ट वे में हम ह्यूमन का स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए साइंटिस्ट ने कुछ इनडायरेक्ट मेथड का खोज किया। ये हम डायरेक्ट नहीं करते हैं, तो कुछ इनडायरेक्ट वे में ह्यूमन में कैरेक्टर का जेनेटिकल इनहेरिटेंस जो हो रहा है उसका हम स्टडी करेंगे, और उसके बहुत सारे इनडायरेक्ट मेथड है, सच एज मेथड ऑफ स्टडी और इनडायरेक्ट मेथड, पेडिग्री एनालिसिस, कैरियोटाइपिंग, स्टडी ऑफ ट्विन्स, बायोकेमिकल स्टडीज, सेल एंड टिश्यू कल्चर, स्टडी ऑफ जेनेटिकल डिसऑर्डर्स। दीज आर द डिफरेंट इनडायरेक्ट मेथड to a study of inheritance of character in human, in which most important is pedigree analysis. सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है कौन? पेडिग्री एनालिसिस। तो इसमें हम लोग भी पेडिग्री एनालिसिस पढ़ेंगे। पेडिग्री एनालिसिस इज ऑल्सो कॉल्ड फैमिली ट्री। पेडिग्री एनालिसिस इज ऑल्सो कॉल्ड फैमिली ट्री. It is the study of inheritance of certain characters in more than one generation. In more than one generation means 2 or 3 generation with the help of a special symbols. इसमें कुछ सिंबल का यूज करके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर के इनहेरिटेंस का स्टडी किया जाता है। ओके, नाउ सी पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री को अगर हिंदी में देखें तो उसका नाम देते हैं वंशावली, मीन्स जनरेशन टू जनरेशन। सिंपली वी कैन से पेडिग्री एनालिसिस मीन्स अ स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सम कैरेक्टर्स और डिसऑर्डर्स जनरेशन टू जनरेशन। अब किसी एक फैमिली के एक मेंबर में सपोज दैट हीमोफीलिया डिसऑर्डर्स है, तो वह हीमोफीलिया डिसऑर्डर्स इस जनरेशन में है। इसके पहले 1 या 2 जनरेशन की बात करें कि 2 जनरेशन पहले हीमोफीलिया किस पर्सन को था। अगले जनरेशन में अगर हम इसका अगला जनरेशन की बात करें तो कितने ऑफस्प्रिंग इससे इफेक्टेड हुआ। तो यह जो एक से ज्यादा जनरेशन तक किसी एक कैरेक्टर या डिसऑर्डर का स्टडी होता है, इसी का नाम हम देते हैं पेडिग्री एनालिसिस। ओके, डेफिनेशन, it is the record of inheritance of certain characters for 2 or more generation in a family which are represented by some specific symbol. Okay, with the help of some specific symbol is called pedigree analysis. And the person of a family in which genetical disorders appear first. जिस फैमिली मेंबर में सबसे पहले कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर्स अपीयर होता है वह पर्सन कहलाता है प्रोबैंड। दैट इज कॉल्ड प्रोबैंड। द पर्सन इन विच द डिसऑर्डर्स अपीयर फर्स्ट इन पेडिग्री इज कॉल्ड प्रोबैंड, एंड प्रोबैंड मे बी मेल और फीमेल।
वह सबसे पहले उस फैमिली में, उस पेडिग्री में मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकती है. ओके. एंड मेल प्रोबैंड इज कॉल्ड प्रोपोसिटस. मेल प्रोबैंड, it means male person that suffered from genetical disorder first in the family is called propositus. And female in which genetical disorders appear first in the family, that is called proposita. That is called proposita. And in pedigree analysis, a study of character or inheritance of character is done with the help of different specific symbols, and that symbols are supposed symbols. ओके. देखें, this is normal female, not suffered from any genetical disorders. Normal female. Normal male, not suffered from any genetical disorders. Okay. Affected female, affected female, it means female is affected, suffered from any genetical disorders. जिसका भी स्टडी हम करेंगे, अगर हम कलर कर दिए, डार्क कर दिए, तो वह शो करता है कि किसी न किसी जेनेटिकल डिजॉर्डर से सफर्ड है. राउंड सर्कल के केस में है तो फीमेल है, और स्क्वायर के केस में है तो क्या हो जाएगा, एफेक्टेड और सफर्ड मेल. ठीक है. और अगर राउंड और स्क्वायर को हमने क्रॉस कर दिया, इट मीन्स यह जो है लाइव नहीं किया, इसका डेथ हो गया. यह पर्सन सरवाइव नहीं किया, इसका डेथ हो गया. इसके अलावे और बहुत सारे सिंबल है, सच एज some other symbols. This like. अब देखिए, यहां तो हमने स्क्वायर की बात किए थे, लेकिन यह जो है थोड़ा डिफर फॉर्म में है, और इसका मतलब है सेक्स अनस्पेसिफाइड. सेक्स अनस्पेसिफाइड, जिसके बारे में कह सकते हैं कि सेक्स क्लियर नहीं है कि यह कौन सा सेक्स है. अनस्पेसिफाइड, हम उसको स्पेसिफाइड नहीं कर सकते हैं, तो उसका सिंबल एक कंडीशन हो गया. ओके. नेक्स्ट, कैरियर फीमेल. कैरियर फीमेल मीन्स in female gene of disorders are present but disease disorders not appears. इसका मतलब है कि इसमें जीन है लेकिन उसमें डिजीज अपीयर नहीं होगा, तो ऐसे पर्सन को हम कहेंगे कैरियर. और भी अगर हम इसी को दूसरे रूप में लिख सकते हैं, यहां पर हम देखें दिस लाइक और दिस लाइक. This is heterozygous. मेल और फीमेल, राउंड है तो फीमेल, एंड इन केस ऑफ स्क्वायर हेटेरोजाइगस मेल. ठीक है. तो ये तो सिंबल है. अब इन सभी सिंबल को दूसरे से मिलाना है, उसके लिए भी हम सिंबल का यूज करते हैं. देखें, नेक्स्ट इज बोथ आर फीमेल और एक दूसरे से कनेक्टेड है. इट मीन्स इट इज द कंडीशन ऑफ
monozygotic twins, and in case of monozygotic twins both of offsprings may be male or female, दोनों या तो मेल या तो फीमेल, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस. एंड दिस इज डाइजाइगोटिक ट्विंस, नॉट कनेक्टेड, both are origin from same but not connected, and sex may be same or differ. सेक्स सेम भी हो सकता है, डिफर हो सकता है, कैरेक्टर उतना ही सेम होगा जितना कि एक ही पेरेंट्स के दो सिस्टर्स में, दो ब्रदर्स में और एक ब्रदर सिस्टर्स में होता है. ठीक है ना. तो ये हो गया डाइजाइगोटिक ट्विंस. दिस इज द मैरिज लाइन. फीमेल इज मैरिज विथ मेल, सो इट इज कॉल्ड मैरिज लाइन. This line is called marriage line. And double line shows consanguineous marriage. It means marriage with relatives or of offspring of same ancestor. तो हम कह सकते हैं marriage with relatives or having same ancestor. ओके. नेक्स्ट देख लिए नॉर्मल फीमेल. हेट्रोजाइगस फीमेल, दिस इज फॉर ऑटोसोमल कैरेक्टर्स. ऑटोसोमल कैरेक्टर के लिए अगर हेट्रोजाइगस शो करना होगा तो हम ये बात करेंगे. ठीक है ना. सेक्स के लिए तो फिर हम कैरियर की बात करेंगे. मेल कभी कैरियर नहीं होता, मेल जब भी होगा तो इफेक्टेड होगा या नहीं तो नॉर्मल होगा. ओके. अब देखें जरा सा, हम एक जनरेशन लिखे हैं. वन फीमेल, नॉर्मल फीमेल इफेक्टेड होगा तो हम कलर कर देंगे. सो दिस इज नॉर्मल फीमेल इज मैरिज विथ नॉर्मल मेल, प्रोड्यूस फोर ऑफस्प्रिंग इन विच 2 आर फीमेल एंड 2 आर मेल. सपोज दैट एनी वन मेल इज इफेक्टेड, सपोज दैट. ठीक है ना. हम आगे देखेंगे. तो इस कपल से 4 ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हुआ. ठीक है ना. 4 में से 2 फीमेल है और 2 मेल. अब देखिए रोमन अंक जो है नंबर, रोमन नंबर रिप्रेजेंट द जनरेशन. रोमन नंबर क्या शो करेगा तो जनरेशन. It means these are the member of first generation and these 4 offsprings are the member of second generation. Okay. And general number indicates offsprings. General number indicates offsprings. Okay. And a line, this line, एक कपल एक पेरेंट्स से 4 ऑफस्प्रिंग हुआ और ये चारों ऑफस्प्रिंग को जोड़ने वाला लाइन है. इट मींस दिस इज कॉल्ड सिबलिंग लाइन. दिस इज कॉल्ड सिबलिंग लाइन. सो दीज आर द डिफरेंट सिंबल्स यूज्ड इन पेडिग्री एनालिसिस, एंड विद द हेल्प ऑफ these symbol we study the inheritance of genetical disorders, characters, generation to generation in human. अब देखना है कि कैरेक्टर का इनहेरिटेंस कैसे होगा. सो कैरेक्टर में बी ऑटोसोमल, सेक्स लिंक्ड और सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल. इन केस ऑफ सेक्स लिंक्ड दैट मे बी एक्स लिंक्ड और बाई लिंक्ड. सम अदर कैरेक्टर्स इज ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑल्सो. ठीक है ना. तो इसका हम स्टडी देखते हैं. नाउ सी inheritance of character may be autosomal, transferred through autosomal chromosome, और सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम और सेक्स क्रोमोसोम, और ऑल्सो थ्रू साइटोप्लाज्म. सो साइटोप्लाज्मिक. तो इनहेरिटेंस 3 तरीके से हो सकता है. विद द हेल्प ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम, विद द हेल्प ऑफ सेक्स क्रोमोसोम और साइटोप्लाज्म. ओके. In case of autosomal chromosome, character equally distributed in both sex, means male and female.
अगर कोई ऑटोसोमल कैरेक्टर है तो वह मेल और फीमेल दोनों में इक्वली जाएगा। ओके, इक्वली ट्रांसफर इन मेल एंड फीमेल बोथ। ओके, सेक्स लिंक्ड मे बी एक्स लिंक्ड और बाई लिंक्ड, बिकॉज सेक्स क्रोमोसोम इज टू टाइप्स, एक्स क्रोमोसोम एंड बाई क्रोमोसोम। तो जो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर है वह एक्स के साथ भी हो सकता है, बाई के साथ भी हो सकता है। इफ कैरेक्टर इज एक्स लिंक्ड, इट मीन्स जीन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम दैट shows criss-cross inheritance. That shows criss-cross inheritance means female to female through male and male to male through female. It is called criss-cross. Okay, and if character is bilinked, that shows holendric inheritance. Holendric inheritance means direct male to male, male से male में जाएगा, that is holendric. And if character is cytoplasmic, that shows maternal inheritance only. It means gene present in cytoplasm of ovum only inherit from one generation to another generation. अगर ओवम के साइटोप्लाज्म में कोई जीन है तो वह अगले जनरेशन में ट्रांसफर होगा, स्पर्म के साइटोप्लाज्म में जीन है उसका ट्रांसफर की पॉसिबिलिटी नहीं के बराबर है। ओके, नाउ ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव, यह भी डोमिनेंट हो सकता है और रिसेसिव हो सकता है। सो ऑटोसोमल मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट ट्रेट्स डू नॉट स्कीप जनरेशन एंड इफ रिसेसिव कैन स्कीप जनरेशन। सपोज दैट अगर कोई कैरेक्टर मान लेते हैं उसका जीन है कैपिटल ए और स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, सपोज जीनोटाइप ए है। देखें जनरली इन इफ ए इज डोमिनेंट, कैपिटल ए इज डोमिनेंट, तो अगर कैपिटल ए को डोमिनेंट मानते हैं तो यह हेट्रोजाइगस कंडीशन में और होमोजाइगस कंडीशन में, दोनों कंडीशन में अपना कैरेक्टर शो करेगा। बट इन केस ऑफ रिसेसिव कैरेक्टर अपीयर्स इन ओनली होमोजाइगस। इन केस ऑफ रिसेसिव कैरेक्टर ओनली अपीयर्स इन होमोजाइगस कंडीशन, बट इन केस ऑफ डोमिनेंट होमोजाइगस हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। तो अगर हम बात करें डोमिनेंट का तो डू नॉट स्कीप जनरेशन, अगर यहां बात करें तो कैन स्कीप जनरेशन। अब देखिए अगर सपोज दैट कैपिटल है तो डिजीज होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए है डिजीज होगा, हेट्रोहोमो बोथ। अगर स्मॉल ए है डिजीज नहीं होगा, मीन्स नॉर्मल हो जाएगा डोमिनेंट के केस में। अगर रिसेसिव केस में देखें, रिसेसिव केस में हेट्रोजाइगस नॉर्मल, होमोजाइगस डिजीज। ठीक है ना। अब देखना है हमको कि और इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि जनरेशन के ट्रांसफर में हेल्प करता है, हम उस कैरेक्टर को देखें। ऑटोसोमल मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव। इन केस ऑफ डोमिनेंट डू नॉट स्कीप जनरेशन, सभी जनरेशन में ट्रांसफर होना है। रिसेसिव कैन स्कीप जनरेशन, बोथ नॉर्मल पेरेंट्स कैन नेवर हैव इफेक्टेड चाइल्ड। अगर डोमिनेंट का कंडीशन होगा और दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हैं
तो कभी भी चाइल्ड इफेक्टेड नहीं होगा इन केस ऑफ डोमिनेंट। बट इन केस ऑफ रिसेसिव बोथ नॉर्मल पेरेंट्स कैन हैव इफेक्टेड चाइल्ड। पेरेंट्स नॉर्मल हैं लेकिन चाइल्ड इफेक्टेड होगा, ऐसा कंडीशन कब आएगा? जब वो रिसेसिव होगा। बोथ इफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव नॉर्मल चाइल्ड। पेरेंट्स दोनों इफेक्टेड हैं, पॉसिबिलिटी है कि चाइल्ड नॉर्मल होगा, लेकिन अगर इसमें दोनों पेरेंट्स इफेक्टेड हैं तो कभी भी नॉर्मल चाइल्ड की पॉसिबिलिटी नहीं है। बोथ इफेक्टेड पेरेंट्स विल ऑलवेज हैव इफेक्टेड चाइल्ड। अब एग्जांपल से देखें, ऑटोसोमल डोमिनेंट। सपोज दैट अगर हम पेरेंट्स की बात करते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर्स अपीयर्स इन बोथ कंडीशन, इट मीन्स होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। अब देखिए, होमो हेट्रो और होमो दोनों कंडीशन लिए हैं, इसका मतलब है कि दोनों पेरेंट्स इफेक्टेड हैं। अब गैमेट बनाइए, क्रॉस करा दीजिए, बोथ आर इफेक्टेड, बोथ आर इफेक्टेड। इस जनरेशन में भी डिजीज था, अगला जनरेशन में भी डिजीज हुआ, मीन्स नॉट अ स्किप जनरेशन। ओके, बोथ नॉर्मल पेरेंट्स, ये कंडीशन इसके लिए है, बोथ इफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव नॉर्मल चाइल्ड। अगर दोनों इफेक्टेड है तो चाइल्ड भी, बोथ इफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव नॉर्मल चाइल्ड। इसके लिए कंडीशन देखना होगा, ये कंडीशन लेकर चले हम। बोथ आर इफेक्टेड, अगर क्रॉस कराएं तो कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए स्मॉल ए, दिस इज नॉर्मल। ये चाइल्ड क्या हो जाएंगे? नॉर्मल। बोथ इफेक्टेड चाइल्ड, दोनों पेरेंट्स इफेक्टेड थे, बोथ इफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव नॉर्मल चाइल्ड, चाइल्ड नॉर्मल हो सकता है। बोथ नॉर्मल पेरेंट्स, अगर हम नॉर्मल कंडीशन में लेकर चले, बोथ नॉर्मल, दोनों नॉर्मल हैं, तो दोनों नॉर्मल हैं मीन्स होमोजाइगस कंडीशन में भी नॉर्मल हैं, हेट्रोजाइगस में भी कंडीशन में, ठीक है ना। अगर दोनों नॉर्मल हैं तो इस कंडीशन में डोमिनेंट का कैरेक्टर अगले जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। रिसेसिव के लिए देखें, बोथ इफेक्टेड पेरेंट्स, सॉरी, रिसेसिव appears in heterozygous condition, this line। अब यहां से बनाइए तो गैमेट ए, इधर से गैमेट ए, दोनों को मिलाइएगा तो हमेशा ये, इट मीन्स इफेक्टेड पेरेंट्स हैव इफेक्टेड चाइल्ड। बोथ नॉर्मल पेरेंट्स, अगर दोनों नॉर्मल पेरेंट्स हैं, मानकर चले हम कैपिटल ए कैपिटल ए ले लें, हम डोमिनेंट का केस नहीं आया, ये दोनों कैपिटल है लेकिन रिसेसिव लेकर चल रहे हैं तो इनको हम नॉर्मल मानेंगे। अगर नॉर्मल लेकर चलते हैं तो अगले जनरेशन में कैपिटल ए सिर्फ आएगा और कैपिटल ए इसमें नॉर्मल। लेकिन अगर हम कर दें हेट्रोजाइगस लेकर चले तब देखिए तो कैपिटल ए नहीं दिख रहा, यहाँ कैपिटल ए स्मॉल ए इन केस ऑफ रिसेसिव कैरेक्टर बोथ आर नॉर्मल। लेकिन नॉर्मल में अगर अगले जनरेशन में देखें तो स्मॉल आएगा, और जब स्मॉल आ गया मीन्स इफेक्टेड हो गया। बोथ नॉर्मल पेरेंट्स कैन हैव इफेक्टेड चाइल्ड, दोनों नॉर्मल पेरेंट्स से चाइल्ड क्या हुआ? इफेक्टेड हो गया। तो ये हमने देखा इनहेरिटेंस किस कंडीशन में? ऑटोसोमल कंडीशन में। अब हम देखते हैं सेक्स लिंक्ड कंडीशन में। एक्स लिंक्ड मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव, एक्स लिंक्ड भी डोमिनेंट और रिसेसिव हो सकते हैं कैरेक्टर। तो डोमिनेंट के केस में जनरली डू नॉट स्किप जनरेशन, कैन स्किप जनरेशन, लेकिन जो भी जनरेशन स्किप कर रहा है वो जनरली फीमेल के लिए, मेल में जनरेशन का स्किप नहीं करेगा, लगातार वहां कंटिन्यू जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिटेंस होगा। नेक्स्ट, इफेक्टेड फादर विल ऑलवेज हैव इफेक्टेड डॉटर। इफेक्टेड फादर, मैं बताया
एक्स लिंक्ड जीन होगा वह क्रिस क्रॉस शो करेगा, मीन्स फादर से कैरेक्टर डॉटर में जाएगा। इफेक्टेड फादर विल ऑलवेज हैव इफेक्टेड डॉटर इन केस ऑफ डोमिनेंट, and in case of recessive, affected mother will have all affected sons. मदर से सन में जाएगा, फादर से डॉटर में जाएगा, बिकॉज एक्स लिंक्ड कैरेक्टर shows criss cross inheritance. Okay, now see, suppose that एक्स ए अगर हम डिजीज के लिए मान लें एक्स ए नॉर्मल का, in case of dominant character appears in homo and heterozygous both, यानी अगर ये कंडीशन एक्स ए इफेक्टेड एक्स ए ऑल्सो इफेक्टेड इन केस ऑफ डोमिनेंट एक्स ए नॉर्मल, ठीक है। अब देखिए, सॉरी, इसमें अगर डोमिनेंट कंडीशन है तो इफेक्टेड होगी, रिसेसिव कंडीशन में इफेक्टेड नहीं होगा। सही है, इधर आइए, रिसेसिव ऑलवेज appears in homozygous condition, it means XA affected, XA affected and other XA normal, XA this condition also normal। तो अगर हम रिसेसिव है तो ये कंडीशन और डोमिनेंट है तो ये कंडीशन। अब इस कैरेक्टर्स के आधार पर, इस की के आधार पर आपको पेडिग्री एनालिसिस का कुछ क्वेश्चन सोल्व करना है। एक दो क्वेश्चन मैं बताता हूं मैं, बाकी आप लोग घर में सोल्व करेंगे। चलिए, क्वेश्चन है, फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स एंड प्रोजेनी, ऑफ पेरेंट्स एंड ऑफ ऑफस्प्रिंग। अगर जीनोटाइप भी निकालना हो, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस भी निकालना हो, ध्यान दीजिए। बोथ पेरेंट्स आर इफेक्टेड, ओके, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। बोथ पेरेंट्स आर इफेक्टेड बट सम चाइल्ड आर नॉर्मल। दोनों पेरेंट्स इफेक्टेड हैं, लेकिन चाइल्ड नॉर्मल भी है, इफेक्टेड भी है। ये किस इनहेरिटेंस का ऐसा कैरेक्टर है? बोथ इफेक्टेड पेरेंट्स हैव नॉर्मल चाइल्ड, ऑटोसोमल डोमिनेंट। अभी कैरेक्टर बताया हूं मैं, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट कैरेक्टर है। कौन सा कैरेक्टर है? ऑटोसोमल डोमिनेंट, ओके। एंड अब देखिए, ऑटोसोमल मीन्स ए, दोनों इफेक्टेड है और दोनों इफेक्टेड है, कुछ नॉर्मल भी है। इसका मतलब है कि पेरेंट्स जो है हेट्रोजाइगस कंडीशन में, और हेट्रोजाइगस ऑटोसोमल के लिए कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए और हेट्रोजाइगस। अब नॉर्मल स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए, सॉरी, हाँ, स्मॉल ए स्मॉल ए, इफेक्टेड कैपिटल स्मॉल, स्मॉल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल। इस तरह से आगे हो जाएगा। सो जीनोटाइप एंड टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, ओके। बाकी क्वेश्चन आप लोग सोल्व करेंगे, ओके। थैंक्स।